So students, we are going with the revision of minimum guarantee to a partner and firm, basically in partnership fundamental. And we are going to start up with the question directly because the basic concept I have already taught you earlier, that when you see the profit loss appropriation account, the debit side, whatever the expense we have, IOC, salary to partners and commission to partners, that has the inverse relationship with the profit, because when the profit increases, as expense increases, profit decreases, expense decreases, profit increases. And IOD is the interest on drawing in the credit side of appropriation account, that is having the direct relation with the profit, because there is increase in IOD means increase in income of the company, then firm profit will also increase. The same thing, if there is a decrease in the IOD, then definitely the profit will also decrease. So that integration you're going to find in the minimum guarantee of to a partner or firm, because that is the amalgamation. First, we are going with the minimum guarantee, that if minimum amount of profit is been guaranteed to a partner, by a partner or by a firm, then what exactly we should be doing it, and how we should be doing it, right? So guarantee given by a partner, that is KLM, our partner sharing 2:1:1. 2:1:1 is a profit sharing ratio. M was guaranteed a profit of rupees 25,000. M को guarantee किया गया 25,000 का minimum guarantee. K agreed to meet the liability arising out of guaranteed amount of M. इसमें guarantee कौन कर रहा है? K guarantee कर रहा है किसको? M को कर रहा है guarantee. Means it is a guarantee given by a partner. The topic is guarantee given by a partner. The firm earned a profit of rupees 80,000 for the year. In this case, you are going to make an appropriation account. आप लोग बनाएंगे appropriation account, and how you are going to do it, that you have to do it right now. See, the answer is already given in this, so I'm not going to waste the time into this. Let's see it, because it's a very normal question. So please don't do it right now. Just see to it, all of you. By profit and loss account यहाँ पे आ जाएगा, या net profit जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा by profit loss account. नेट प्रॉफिट 80,000 गिवन है, यहाँ पे आपने ले लिया. अगर इससे पहले कोई चार्ज है, तो चार्ज वाला कंडीशन मीट करना पड़ेगा आपको. मींस यू आर गोइंग टू डिडक्ट दोस चार्ज एक्सपेंसेस इफ इट इज देयर. सपोज कोई मैनेजर का कमीशन है, या कोई रेंट देना किसी को, सैलरी देना किसी एम्प्लॉय को, तो वो आपके जो चार्जेस वाले पार्ट है, इवन द इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई है, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो वो अगर है, तो वो सब चार्जेस है. तो चार्जेस जो है आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं. तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें से इस अमाउंट में से उसको लेस करने के बाद ही आप प्रॉफिट को लिखेंगे यहाँ पे. इज क्लियर? तो ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, देन यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट 80,000 इनटू द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज द 2:1:1. सो 2/4 1/4 1/4 करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है इनका, वो आ रहा है, दैट इज 40,000, 20,000 एंड 20,000. 2:1:1 इस तरह से आ जाएगा. इसको इस तरह से निकाल, इस तरह से इन्होंने प्रेजेंटेशन जो दिया, दिस इज अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन. प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन. मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन जो होगा आपका इस तरह से होगा. मैं आपको थोड़ा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा ब्रॉड करके दिखा रहा हूँ. ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपका. ये आपको मैं डेबिट साइड को मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे. तो आपको पहले क्या करना है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लिखते हैं हम लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको कर लेना है. उसके बाद आपको जो प्रॉफिट है उसको आप डिस्बर्स करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर. कीप ए गैप लाइक दिस. राइट, जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उनको लिख लीजिए आप. 40,000, 20,000, 20,000,
ये ओरिजिनल प्रॉफिट लिखने के बाद अब आपको देखना क्या है, इसमें गारंटी किसने की है, द एम वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 25,000, एम को गारंटी हो रहा है 25,000 का, तो एम को अगर 20,000 मिल रहा है तो कितना, 25,000 में से आप 20,000 लेस कर लीजिए, 25 माइनस 20,000, तो गारंटी 20,000 की थी ना, एम को 25,000 की थी, 25,000 से गारंटेड अमाउंट, जो एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, तो जो 5,000 रुपए कम मिल रहे हैं उसको, तो दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ये बेटा डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी आपकी इस तरह से आ जाएगी, तो डेफिशिएंसी आपने निकाल लिया 5,000 का। इसको प्रॉमिस किसने किया है, मिस्टर के हैज प्रॉमिस, के हैज प्रॉमिस एग्रीड टू मीट द लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ गारंटेड अमाउंट ऑफ एम, जो मिनिमम गारंटी 25,000 है उसमें अगर कोई कमी होती है तो वो मिस्टर के पूरा करेगा एम के लिए, ये उसने कहा हुआ है, तो इसलिए गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर है, तो इसमें के में से हमको अमाउंट लेस करना पड़ेगा, तो विल लेस इट हियर, तो लेस लिखेंगे आप इसमें, यहाँ पे लेस लिखिए, डोंट डायरेक्टली डिडक्ट द अमाउंट, इसमें लेस लिखेंगे आप, there's a language for this, less deficiency, पूरा नहीं लिख रहा मैं, deficiency deficiency paid to M, यहाँ पे जो भी पेड टू एम आएगा, डेफिशिएंसी पेड टू एम आएगा या डिडक्टेड टू बी पेड टू एम करके, आपका अमाउंट कितना है 5,000 का, तो 5,000 रुपीज आप यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, तो डिडक्ट वाले चीज को आप ब्रैकेट में रखिए, पुट लाइक दिस, and then you put write the main column, that is 35,000 like this, ठीक है। अब L को कोई मतलब नहीं, L का तो 20,000 वैसे आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, there is no change in L's amount because इसमें कुछ बोला नहीं गया है, M को गारंटी की गई है, तो M में क्या होगा ये चीज, M में it will be added, M में it will be added, you write down add here, deficiency paid by, that is K, लिख के आप 5,000 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 25,000 मिनिमम जो आपका अमाउंट था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप एवरीबडी गॉट दिस, इट्स वेरी सिंपल, बट द वे यू गोइंग टू पुट इट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका टोटल करिए, यहाँ टोटल करिए, जो भी आएगा ये आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डोंट डायरेक्टली लेस इट फ्रॉम हियर 5,000 एंड ऐड 5,000, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ शॉर्ट लाइक टाइम, यू कैन डू दैट, अदरवाइज try to opt this only. I hope it is clear to everyone. चलिए अब ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग, we are going to have the question from here. So Ajay, Vinay and Chetan are partners sharing 3:2. The partnership did provide for the following. Salary कितनी मिल रही है उसको बेटा, check out all of you. Salary 2,000 per quarter Ajay and Vinay. Chetan entitled to commission of 8,000. Vinay guaranteed a profit of 50,000 per annum. Profit for the year ended 31st March 15 was 1,50,000, which were distributed among the Ajay, Vinay and Chetan in the ratio of 2:1. ठीक है ना, without taking the consideration the provision for partnership deed. Deed के हिसाब से क्या था, पार्टनर डीड के हिसाब से सैलरी भी था, कमीशन भी था, और उसको विनय को गारंटी भी किया था प्रॉफिट का 50,000 का, तो एज पर द डीड ये तीन चीज होनी चाहिए थे, लेकिन हुआ नहीं है। 2015 में आपका 31 मार्च को जो प्रॉफिट आया 1,50,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अजय, विनय एंड चेतन को इन द रेशियो ऑफ 2:1, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में, विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द प्रोविजन फॉर डीड, डीड को कंसिडर किए बिना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब बात आती है हाउ यू गोइंग टू रेक्टिफाई द एरर एंड हाउ यू गोइंग टू गिव द पे ऑफ द मिनिमम गारंटी अमाउंट इन दिस। एनीवे, इसमें कहीं आपका पास ऐसे रेक्टिफाई एंट्री फॉर अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, यहाँ पे आपका मिनिमम गारंटी है किसको, विनय को। अब इसमें गारंटी किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा क्या ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, अजय एंड चेतन ही को ही देना पड़ेगा इसको, तो दैट इज द मिनिमम गारंटी अमाउंट। अगर डेफिशिएंसी होगी तो पहले इसको करना कैसे, एनीबॉडी कैन टेल मी। तो इसमें पार्शियल एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। यस, पार्शियल एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, बिल्कुल बनेगा पार्शियल एडजस्टमेंट टेबल, बिल्कुल सही है, पार्शियल एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। इसमें बेटा आप लोग पार्शियल एडजस्टमेंट टेबल आप बना लीजिए, क्योंकि इसमें
पर्टिकुलर को लेके 4 बनेगा आपका, तो प्लीज मेक द पास्ट एडजस्टमेंट टेबल ऑल ऑफ यू। तो मैं इसको फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्टिकुलर ले लीजिए, 3 आपके विनय, अजय, विनय, चेतन आ जाएगा, देन टोटल का अमाउंट आ जाएगा। तो डू दिस ऑल ऑफ यू प्लीज, आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर यू ऑल हियर। मैं भी बना रहा हूँ यहाँ पे, आप भी बनाइए, देन विल प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका सर इसमें टेबल के अलावा जो सर इसमें टेबल के अलावा जो अलग से कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी दिखानी पड़ेगी वर्किंग नोट्स में। इसी में बेटा, इसमें इसमें ऐसा इन्होंने वो नहीं बोला, इन्होंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इस पे आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं है, तो उस कंडीशन में आप एंट्री करके एडजस्टमेंट करके छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना। नो सर, जैसे कि वर्किंग नोट में हम वो दिखाएंगे किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। हाँ बट ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा, मैं बना रहा हूँ, इसी में बनाऊंगा आपको। वी हैव टू मेक इन दिस ओनली सेम। अजय, विनय एंड चेतन, मैं बेटा ABC ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बस आप मत लिख देना एग्जाम में, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अजय, विनय एंड चेतन है ये आपका टोटल आ जाएगा सर, टोटल यहाँ लिख लीजिए, ये आपका पर्टिकुलर हो गया। ये पास एडजस्टमेंट टेबल है, ठीक है। Now the point is, what is to be given, what already happened. First we'll take that. Already जो happened हो चुका है वो क्या है, गलत जो है। First point, that is profit. Yes. Already. The profit already क्या कर दिया आपने, बताइए। क्रेडिट। प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है बेटा, समझ रहे हैं आपने, देखिए बेटा 31 मार्च 15 was इतना was distributed among the partner अजय, विनय एंड चेतन in the ratio of 2:1. So already credited है बेटा ये। तो देने का मतलब होता है पार्टनर्स को दिया आपने, क्रेडिट किया। किसी को नहीं आ रहा बेटा पूछेंगे, अनुष्का ध्यान रखिएगा, नहीं समझाना पूछिएगा। आशी, अद्विका, जिया, एनीवन, ठीक है ना। हैविंग प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। सौम्या, रिदमा इज नॉट देयर, रिदमा इज देयर, ठीक है, फाइन। प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड कितना है बेटा, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कितना है हमारा, दैट इज रेशियो जरूर मेंशन करिए यहाँ पे, 2:1। तो प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया आपका, कितने का प्रॉफिट था, 1,50,000 का प्रॉफिट था। यहाँ में लिख रहा हूँ बेटा 1,50,000, इसको आप क्रेडिट कर दीजिए 2:1 में। कितना आएगा 2:1? 60,000, 60,000 and 30,000. 60,000, 60,000 and 60 and 30, 2:1 है ना, 60,000, 60,000 and 30,000। तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट आपका 1.5 लाख रुपए आ गए, 60, 60 और 30। इसके बाद आपका जो चीज हो चुका उसको हमने यहाँ पे इनक्लोज कर देना। आई एम यूजिंग द सेपरेट कलर दैट व्हाट हैज टू हैपन इसके लिए। अब होना क्या चाहिए था, जो होना था वो आपका सैलरी देना था आपको 2,000 रुपीज पर क्वार्टर अजय विनय का। तो प्लीज कैलकुलेट दिस थिंग ऑल ऑफ यू। सैलरी टू बी गिवन क्रेडिटेड, सैलरी टू बी आपको क्रेडिटेड, सैलरी 2,000 पर क्वार्टर। बेटा बताइए एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, यस, हाउ मेनी क्वार्टर्स इन 8,000, 4 क्वार्टर्स हैं तो 4 to 8 हो गया, 8,000, 8,000। किसको मिल रहा है ये सैलरी, अजय एंड विनय को, उनको मिल गया अजय एंड विनय को। ये ना क्वेश्चन कराया लग रहा है वजह से। सैलरी भी क्रेडिटेड हो गया। देन नेक्स्ट क्या था बेटा, कमीशन किसका था, कमीशन टू बी क्रेडिटेड,
कितना क्रेडिट करना है कमीशन बेटा? सी का, दैट इज चेतन का 8,000 रुपीज। ये आ गया। ये देखिए यहां तक आपका जो चीज आपका इसमें जो आना था वो आपका आ गया, एक्सपेंस तुम्हारा आ गया। अब इसमें हमारा गारंटी किस बात की थी? गारंटी किस बात की थी बताइए? प्रॉफिट की थी ना, किसको गारंटी थी प्रॉफिट की? विनय वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच रुपीज? 50,000 पर एनम। आप रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए, वैसे तो 50,000 1,50,000 में से आप इसको लेस करिए, 16,000 एंड 8,000 लेस करके बताइए कितना आ रहा है, बताइए। If you less the 1 lakh out of 1,50,000, less the total amount of this, कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? 1,26,000. 1,50,000 में से आप इसका 24,000 लेस करिए, कितना आ रहा है? 1,26,000. 1,26,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए टू इसके इसमें करिए। इनको किस रेशियो में करना पड़ेगा आपको? 2:2:1 में, या कोई और रेशियो आएगा? लेकिन यहाँ पे ऊपर रेशियो कुछ दे रखा है कि इनका रेशियो है कितने का? अजय, विनय एंड चेतन का रेशियो गिवन है कितने का? 3:3:2 का था। बताइए। एक्चुअल प्रॉफिट तो यही होगा ना आपका, एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है, तो डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है बेटा? कैलकुलेटेड एंड टेल मी प्लीज। 3:3:2। All of you calculate please. 3/8, 3/8, 2/8. Yes, anybody? What's our calculation? Tell me the amount fast, beta. Sir, Ajay will be getting 4,7,250. Yeah, Ajay will be getting 4,7,250. Same for Vinay. Same for Vinay also. 47,250. देखिए मैं इसको कैलकुलेशन जरूरी करा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए, मतलब समझिए क्यों करा रहा हूँ मैं। द मोमेंट यू नो कि विनय को कितना मिल रहा है, विनय को कितना मिल रहा है? 47,250 मिल रहा है, इसका मतलब उसको 50,000 रुपीज का मिनिमम अमाउंट नहीं मिल रहा है। तो आप ये काम करिए, इसको कैलकुलेशन नहीं रोक दीजिए। अब उसको मिनिमम अमाउंट कितना देना चाहिए? मिनिमम प्रॉफिट टू विनय कितना मिलना चाहिए बताइए? मिनिमम प्रॉफिट टू विनय 50,000. 50,000। यहाँ पे हटा के 50,000 यहाँ लिख दीजिए। जो मिल रहा है उससे मतलब नहीं, देखिए उसको जो मिलना चाहिए था उससे मतलब है हमारा यहाँ पे टू भी क्रेडिटेड है, तो 50,000 को मिलना चाहिए था। 50,000 मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो उसको जो मिलना था 50,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था, तो बाकी लोगों को कितना मिलेगा बताइए? 47,250 यहाँ पे था, डेफिशिएंसी 50 माइनस 47,250 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 750. और ये सी का कितना शेयर आ रहा था बेटा हमारा? चेतन का कितना आ रहा था? Sir, 31500. 31500, ठीक है। तो 47,250 जो है उसका अमाउंट है जो मिस्टर विनय को मिल रहा था, 50,000 में लेस करेंगे तो कितना उस पर डेफिशिएंसी चाहिए यहाँ पे? 2750. 2750 डेफिशिएंसी चाहिए थी इसको, विनय को किसका बनाने के लिए? 50,000 बनाने के लिए। अभी 2750 कौन देगा इसके अंदर? इसमें किसी एक रेस्पेक्टिव एक पार्टनर तो बोला नहीं कि मैं दूंगा इसके अंदर, या तो ना तो अजय ने बोला है ना ही चेतन ने बोला कि मैं दूंगा, तो कौन कौन मिलके देगा इसको बताइए? भाई अजय और चेतन ही तो देंगे ना, अजय भी देगा और चेतन भी देगा, किसको देगा? ये डेफिशिएंसी अमाउंट जो आया है, डेफिशिएंसी अमाउंट कितना आया है? 2,750 रुपए आया है। ये कौन देगा? चेतन भी देगा इसको और अजय भी अपने पैसे देगा, बस रेशियो डिफरेंस होगा। तो रेशियो कितना है इनका? 3:3:2। तो आप ये 3 वाला 3 तो हटा ही दीजिए, क्योंकि वाला 3 से कोई मतलब नहीं है। तो अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि
3:2 में डिवाइड हो गई है अमाउंट, यस और नो? Deficiency amount will be given by whom? That is A and C. So that 2750 will be distributed among these two partners or somebody else? बताइए. Sir, these two partners. Simple, these two partners only ना. तो आप इसको 3/5 and 2/5 में डिवाइड कर लीजिए. 1650 and 1100. इसका कितना आ रहा है बेटा? 1650. 16 ब्लैक 16 कितना 50, ठीक है. Yes. और इसका 1100 आ रहा है. Yes. देखिए बेटा, अब मिस्टर सी जो है अपने में से 1100 पे करेगा और मिस्टर ए जो है 1600 पे करेगा, 1650 पे करेगा टू मिस्टर बी दिस बिने के लिए. तो आप 50,000 यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे? देखिए ये थोड़ा ध्यान से लीजिएगा. सैलरी जो देना था दे दिया आपने, कमीशन जो देना था दे दिया आपने. चेक कर लिया क्वेश्चन के अंदर कि मिनिमम प्रॉफिट कितना आ रहा था, इतना आ रहा था. जितना कम पड़ रहा है 50,000 को दे दीजिए पहले. उसके बाद देखिए कितना कहाँ कम पड़ रहा है. वो देखने के बाद आप उसको फिर क्या करिए, उसको निकालिए वैल्यू कितना आ रहा है. 47250 में से आप 50 लेस करिए, कितना आएगा बताइए. लेस पे बताओ. 47250 माइनस 1650. यस. So 45600. फोर फाइव कितना है बेटा? 600. 600, ठीक है. और इसमें कितना आएगा? सी वाले में, चित्र वाले में 31,500 में 3400. 3400 आ जाएगा. Sir, 30400. Oh, sorry. Yes. Wait. 30400. The total amount coming here is how much? 1,26,000. ठीक है. तो ये आपका सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, देन मिनिमम प्रॉफिट टू बिने आ गया. अब इसका क्या करना है? इसको टोटल कर लेना है, सिंपल. एडजस्टमेंट हो गया आपका. से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेशन करी है ये वर्किंग नोट्स में दिखानी जरूरी है. बट यह जो मैंने किया है, जो यहाँ पे किया है, यस सर. बेटा बिना उसके कैसे करेंगे आप बताइए. आपका प्रॉफिट जो है एक्सपेंस निकालने में जो बचेगा वो आप न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे एज पर द ओल्ड व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू. उसके अंदर जो कमी होगी तभी तो डेफिशिएंसी पता चलेगा. कैसे डेफिशिएंसी बिना आप दिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट? बिना प्रॉफिट टू बिना करके कर दिया आपने. यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो किया ना एक्चुअली आपने सारे को. हेलो, प्रॉफिट तो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना एक्चुअल में से. कितना अमाउंट उसको देना है और कितना मिलना चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए. तभी तो हम यहाँ पे निकालेंगे. सर मतलब वर्किंग नोट्स में करेंगे या फिर रफ में कर सकते हैं? करेंगे. ट्राई आउट करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं. ये 53,600 आ गया, ये 58,000 हो गया आपका, ये आपका 38,400 हो गया. ये टोटल आपको कितना आएगा? 1,50,000 मैच करना चाहिए बेटा. जाना टोटल ऑफ दिस शुड मैच दिस टोटल ऑलवेज जाना. अब आपका ये बेटा अमाउंट मिलना था, मिला कितना? उसको 60,000 मिला है. मिलना कितना था? 53,600 मिलना है. तो कितना उसको ज्यादा मिला कम मिला भाई? फिर 60,000 मिल चुका है, मिलना चाहिए 53,600. तो कितना ज्यादा मिला कम मिला? से ज्यादा मिल गया. ज्यादा मिला. आप अपने ऊपर ले लो ना. 60,000 मुझे मिल गया और मुझे मिलना था 53,600, तो मुझे ज्यादा मिल गया. कितना ज्यादा मिल गया आपको? 6,400. नेक्स्ट 60,000 मिला है, मिलना चाहिए 58,000. So plus 2,000. प्लस 2,000 मिला है. कितना इसके अंदर? 30,000. मिलना चाहिए 38,400. तो माइनस 8,400. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? तो भाई सीधी सी बात है, इसमें जो डेबिट होगा ये आपका ये जो है इसको देगा, ये 2,000 रुपये इसको देगा
और ये डेबिट होंगे दोनों में, वो क्या होगा, क्रेडिट। जिसको कम मिल रहा है उसको मिलना पड़ेगा, 8400 मिल जाएगा सी को, चेतन को, और ए देगा और बी देगा बेटा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बेटा? हेलो बेटा, इसमें सभी से पूछता Yes, sir. हूँ क्लियर टू एवरीवन और नॉट, बिकॉज आगे बढ़ने का फायदा तब है जो आपका दोनों चीज समझ में आ रही हो कि क्वेश्चन का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, वो आपको ग्रेविटी उसकी बढ़ती जाएगी। इसलिए आप प्लीज बी इन टच विद मी, यस और नो। चलिए, आई होप यू गॉट इट ऑल ऑफ यू। ये चीज आपका बेटा आ गया। अब आपको एंट्री कर लीजिए, इसका एंट्री जरूर करिए बेटा, प्लीज डू द एंट्री ऑफ दिस ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, ये रहा यहाँ पे, देखिए ये सेम हमने किया है, इन्होंने थोड़ा सा रिवर्स किया, मैंने जो आपका जो एक्चुअल करता वो कर दिया मैंने इन्होंने पहले वो कर लिया जिसको ये होना चाहिए था, और जो हो चुका उसको आप बाद में कर रहे हैं। मैं इसका उल्टा कर लिया था, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। और ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी या चिल्ड्रन कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 8400। ये एंट्री आपको बिना किए मार्क्स मिलेगा नहीं। 53 बी करेंगे आप लोग जरा एक बार प्लीज ट्राई ऑल। इसमें आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सो प्लीज मेक द एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट, और थोड़ा लेंथी बनाया करिए हमेशा, जिससे क्लैरिटी से वो चीज आ जाए। और नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिए, लेकिन स्टार्ट अपने आप करिए पहले सब लोग। स्टार्ट क्वेश्चन समझिए पहले आप लोग। पी एन क्यू आर पार्टनर्स, पी एन क्यू पार्टनर्स है इसके अंदर, आपके पी एन क्यू पार्टनर्स हैं, शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर मतलब न्यू पार्टनर आ गया एज न्यू पार्टनर फॉर 18 शेयर्स को मिल रहा है। द प्रॉफिट विद द गारंटेड प्रॉफिट इज 75,000। उसको गारंटी है, कितना प्रॉफिट गारंटी किया है, एक 75,000 रुपीज का गारंटी किया गया कि मिलेगा ही मिलेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P and Q will be remain the same, but they agreed to bear any deficiency account to have guarantee to the R in the ratio of 3:2। कि कोई गारंटी अगर करते हैं तो उसको उसने बोला कि अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो 3:2 में होगा, अदरवाइज उन्होंने क्या कहा कि ये चीज तो मतलब आपका अमाउंट दोनों का क्या होगा, वैसा रेशियो ओल्ड रेशियो रहेगा, वो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन गारंटी अमाउंट जितनी है वो डेफिशिएंसी अमाउंट को ये 3:2 में बेयर करेंगे। तो आप बताइए इसके अंदर क्या करना है। यू हैव टू मेक प्रॉपर सेपरेशन अकाउंट, बनाइए। सेम पैटर्न है, 5-4 आपका प्रॉफिट कितने का है, कितने वाज 4 लाख रुपए। मेक एप्लीकेशन अकाउंट ऑल ऑफ प्लीज। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट लिखिए। ये आ गया बेटा। प्रॉफिट कितना था आपका, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा, 4 लाख। 4 लाख रुपए का बेटा ऑलरेडी गिवन है, 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट आ गया आपको। अब आपको देखना ये कि इसके अलावा आपको कोई एक्सपेंस तो नहीं है इसके अंदर, अगर कोई एक्सपेंस है तो देख दीजिए, उसके बाद आप प्रॉफिट की बात करेंगे, गारंटी की बात करेंगे। कोई एक्सपेंस है क्या इस क्वेश्चन में, या सौम्या कोई एक्सपेंस है? सौम्या, डू यू हैव एनी एक्सपेंस है बेटा? No. No. So we will distribute the profit among the partners in their respective shares to profit transferred to partners capital account. So profit में आपका P, Q और कौन आ रहा है? इसमें आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा।
आप लोग को न्यू रेशियो निकालना आता है? मैंने आपको एडमिशन में करा दिया है। पी क्यू आर, old partner old ratio is being given to you, new partner new ratio is given to you and no other information given, तो केस 1 ए हो जाता है। ये देखिए मैं लिख यहां बना के दिखा दे रहा हूं, P Q and who is admitted in this? R. R. Yes, but R is a new partner। old ratio कितना given है आपका? 5/8, 3/8। R is admitted in the new business as for 1/8 share। ये आ गया। न्यू रेशियो न्यू रेशियो हो गया। तो ये आ गया आपका। तो न्यू रेशियो जब आ गया आपका यहाँ पे, तो उस कंडीशन में अब इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन तो है नहीं, तो लेट द फर्म प्रॉफिट भी 1 मान लीजिए, 1 - 1/8 करिए, 7/8 आ जाएगा। ये आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कौन लेगा? पी एंड क्यू लेंगे। जब कोई शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, किस रेशियो में लेंगे? तो ओल्ड रेशियो में इसको इस अमाउंट को शेयर करेंगे। तो न्यू शेयर निकालेंगे हम लोग। न्यू रेशियो निकाल रहे हैं कैसे? अब पी का 5/8 ऑफ 7/8 निकालिए न्यू रेशियो। क्यू का 35/64। हाँ, एक मिनट, 3/8 एंड ऑफ 7/, आर का न्यू रेशियो कितना है इसमें? आपका पी का बेटा आ रहा था 35/, yes, how much you are getting? Tell me. 64। 64। सर इसका क्यू के कितना आ रहा है बेटा आप लोगों का? 21/64। 21/64, good. Now you have to get the denominator, this also 64. So what you multiply with R in this? 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर बोथ, so 8/64. So 35:21:8 is the new ratio of the partners. तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया आपका। तो आप न्यू रेशियो को में डिवाइड करिए इस प्रॉफिट को, एंड अमंग द पी क्यू आर डिवाइड दिस रेशियो, प्लीज डिवाइड इट। आप 44 लाख रुपीज को डिवाइड करिए तीनों पार्टनर्स में। आई होप यू गॉट दिस ऑल ऑफ यू। समझ में आया बताइए? पी क्यू एंड आर का एडमिशन चैप्टर हमने कर लिया इसको, लेकिन आप लोग का यहाँ करके दिखा दिया मैंने। न्यू रेशियो दैट इज 35:21:8 है। ये दो आपके इवन है या ऑड है बेसिकली, तो इवन ऑड की वजह से ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता, यही हमें छोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज द न्यू रेशियो। इसमें आपको न्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 4 लाख का प्रॉफिट है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करिए इसके अंदर। चलिए टेल मी द प्रॉफिट, हाउ यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए प्रॉफिट कितना है बेटा, ओरिजिनल प्रॉफिट बताइए कितना है। यस अद्विका। So question में एक line रखी हुई है, the new profit sharing ratio between P and Q will remain the same. The new profit sharing ratio of P and Q will remain the same, but they agree to bear the efficiency. बेटा वो तो आपका सेम है, तो वही होगी ना, 5:3 तो हुआ। आपको केस 1 ए ही बनेगा ना बेटा। जब ये हमारा केस 1 ए में यही तो है कि ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो वो सेम है, वो चेंज तो हो नहीं रहा ना। वो तो डेफिशिएंसी अमाउंट जब हम निकालेंगे उसको इन्होंने 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, बाकी तो आपका न्यू रेशियो तो बिल्कुल सही आया आपका। ठीक है, अद्विका गॉट इट? Yes sir, yes sir. 4 लाख को डिवाइड कर दीजिए, जो ओरिजिनल रेशियो उस पर डिवाइड करिए। 4 लाख 35:21:8 में डिवाइड करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। सर पी का 218750 आ रहा है। 218,218,750। ओके, एक मिनट, दिस इज द प्रॉफिट, फाइन, ठीक है। क्यू का कितना? सर क्यू 131250। 131250।
250, आर का 50,000. आर का 50,000. Okay, fine. Now, in this question, basically, you have to understand that deficiency amount कितना आ रहा है पहले देख लो. गारंटी अमाउंट कितना बेटा चलो देखेंगे यहाँ पे. गारंटी प्रॉफिट क्वेश्चन में देखिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ 75,000 is the minimum guarantee given to Mr. R. Basically, when nothing is mentioned in this कि कौन पार्टनर कर रहा है तो हम एज अ फॉर्म लेके चलेंगे. दैट इज तो फॉर्म ने किया एक तरह से देखा जाए तो आपका इसमें 75,000 तो 25,000 की जो डेफिशिएंसी इसको मिल रही है तो डेफिशिएंसी कितनी हो रही है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 25,000 की. 25,000 की डेफिशिएंसी है ये. दिस विल बी बोर्न बाय मिस्टर पी एंड क्यू इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर. तो पी एंड क्यू का रिस्पेक्टिव शेयर क्या आएगा इसके अंदर बताइए. सर 3:2 में बांटेंगे ना. बिल्कुल 3:2 में बांटेंगे. यहाँ ध्यान रखना गलती मत कर देना कि आप उसका ओल्ड 5:3 में लेके चल रहे हैं. क्वेश्चन में जब मेंशन है तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर. ये सिंपल जो क्वेश्चन मेंशन है कि 3:2 में डिवाइड करना है. तो डिवाइड दिस 25,000 रुपीज डेफिशिएंसी इन 3:2. 3:2 में डिवाइड करो. 3/5 इसमें करो, 2/5 करो. दिस इज फॉर दैट इज दिस विल बी डन फॉर द sake of P and this will be done by the Q. Do it and tell me what's the amount. सर P का 15,000 and Q का 10,000. 15,000 P will be sacrificing and Q will be sacrificing 10,000. So you'll do it here. That is less deficiency paid to R. Less deficiency paid to R का मतलब क्या हो गया? लेस डेफिशिएंसी पेड टू आर का मतलब है 10 जितना जो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द गारंटी वो लेस कर रहे हैं आप इसमें से. 15,000 यू आर गोइंग टू लेस फ्रॉम दिस. ऑल ऑफ यू अदर स्टूडेंट आल्सो विल प्लीज चेक इट आउट दिस. यहाँ लेस करके अमाउंट लिखिए. यहाँ भी लिखिए लेस डेफिशिएंसी पेड टू आर. कितना आएगा डेफिशिएंसी? 10,000. 10,000. यस. ये लेस कर दीजिए यहां से. और इसमें आपको ऐड करना है तो ऐड वाला आप लिख लीजिए इसके अंदर. ऐड डेफिशिएंसी पेड बाय. डेफिशिएंसी पेड बाय कौन? पी कर रहा है कितना वो लिखिए. क्यू कर रहा है कितना वो लिखिए. सब नहीं कर रहे हैं. पी दोनों पी और क्यू दोनों कर रहे हैं. तो फिर पी कितना कर रहा है बेटा? 15,000. राइट इट डाउन. 15,000. क्यू कर रहा है 10,000. तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया. इसको आगे बढ़ा के इसमें लिख. इसका कितना आ गया? 75,000 आपका आ गया अमाउंट. इसका कितना आएगा? 121,250. Correct me if I am wrong anywhere. Please correct me if I am wrong. कितना है? 203. I hope you got this all of you. आगे समझ में नहीं आगे बेटा. टोटल कर लीजिए इसका. बच्चों क्लियर है सबको? देखिए बेटा इस साले में मिनिमम गारंटी था फॉर्म का बेसिकली टू अ पार्टनर. इसके ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया वो पास एस्टिमेट विद गारंटी था. ठीक है ना. तो ये आपको पिछला क्वेश्चन हमने किया था, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो पार्टनर टू पार्टनर था. ये ध्यान रखिए मिनिमम गारंटी पार्टनर टू पार्टनर विदाउट एनी पास एस्टिमेट था हमारा. तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन का वेरिएशन कैसा है उसके बेस पे करना है. चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग. अब ये वाला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपका थोड़ा ब्लर आ रहा है दिखने में. कैन यू सी ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
Anil, Sunil and Ravinder entered into partnership on 1st January 2011. The two share profit in the ratio of 2:1:1. It was provided that the deed that Ravinder's share of profit will not be less than 70,000 per annum. Deed we mentioned already. The losses for the year ended 31st December 11 were 2 lakh rupees. Before allowing IOC interest 9,000 to that is Anil's loans which is due for the current year. ये अनिल लोन वाला एक अमाउंट यहाँ पे आ गया 9,000 इंटरेस्ट बिफोर आ गया. दिस इज बिफोर गिवन. अब आपको बनाना क्या है इसके अंदर? यू हैव टू मेक प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2011. चलिए ये लॉस का क्वेश्चन है, आप जरा देख के बताइए मुझे क्या करना है इसके अंदर. लिखा किस क्वेश्चन में क्या है बेटा? आपको लिखा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए लिखा है इसके अंदर, लेकिन लॉस के केस में आपका ये क्या अभी आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन पाएगा इसमें? हेलो, आर यू गोइंग टू रियली मेक द नो सर. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यस और नो? अभी नो बताया निखिल ने. एनीबडी एल्स? देखिए ये आपका कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2012 का क्वेश्चन है. ये आपको कंफ्यूजन पे दे रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसमें एप्रोप्रिएशन लिखा था सर मैं बना के आ गया और क्या करना चाहिए. नो, अगर आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सब कुछ सही भी कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलना, 0 मिलना है. क्योंकि अगर आपका वो हेड ही नहीं है, वो आपका अकाउंट ही नहीं है, तो आप उसके अंदर करके करो क्या, सारा चीज गलत हो जाएगा. सो मेक यू आर गोइंग टू मेक विच अकाउंट नाउ? बताइए. Profit and loss account. Yes, very nice. So make profit loss account, all of you, right now. Please make it, please. ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपका एक ये वर्ड जो दिया ना, बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट 9,000 ऑन इंटरेस्ट अनिल्स लोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा. यस, एनीवन गॉट इट? कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है? कैन यू टेल मी प्लीज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? डेबिट साइड. डेबिट साइड से मुझे बताएंगे बेटा, कौन किसने बताया मुझे? बता बेटा क्या करना है? So credit side we will write by net loss. You can't write net loss. You can't write. That's what I'm asking. ये थोड़ा टेक्निकल है, सबसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें हम क्या कहां से स्टार्ट करेंगे. सर डेबिट साइड में 2 नेट लॉस आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा. नेट लॉस मत लीजिए प्लीज, डोंट टेक नेट लॉस. राइट डाउन 2 लॉस बिफोर. क्या किससे पहले ये? Yes? Interest on loan. Interest on who is the person? Interest on Anil's loan, na? Loss before interest on Anil loan was given to you. How much be loss? 2 लाख रुपए का लॉस है. Two loss before interest on Anil's loan is 2 lakh rupees given to you. Fine. अब आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिखाना पड़ेगा नहीं दिखाना पड़ेगा? देना है या नहीं देना बताइए पहले. Yes sir. Yes. 2 इंटरेस्ट ऑन क्या किसका आएगा लोन? 2 इंटरेस्ट ऑन Anil's loan. yes. कितना आएगा बेटा? प्लीज कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन Anil's लोन. 1 जनवरी को है, अकाउंट को क्लोज हो रहा है, देख लीजिए इसके अंदर. दिसंबर में कब से कब तक आएगा? कोई स्पेसिफिक डेट दे रखा उसने? सर 9,000 स्पेसिफिक अमाउंट दे रखा है. 9,000 स्पेसिफिक अमाउंट दे रखा, तो स्पेसिफिक अमाउंट ही आएगा, ध्यान रखिएगा. देखिए ये चीज आपको क्लैरिटी, मैं आपको कंफ्यूज कहीं कहीं करूंगा क्योंकि रीजन क्या है, बोर्ड भी आपको वही कंफ्यूज करता है. आपको दिमाग में आना चाहिए
Once you read the question, you should get it framed in your mind कि ये चीज है यहाँ पे लोकेटेड, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये चीज बार बार रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 9,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया आपका, ऑलरेडी गिवन था। अब आपको क्या करना है बेसिकली, हाउ मच इज द प्रॉफिट गारंटेड टू रविंदर? It was provided that in the deed that Ravinder's share of profit will not less than rupees 70,000 rupees per annum। 70,000 का उसको पर एनम का प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन तो लॉस का आ गया हमारा, तो क्या करेंगे, देंगे नहीं देंगे प्रॉफिट? सर देंगे। तो कहाँ देंगे, तो डेबिट साइड देंगे या क्रेडिट साइड देंगे उसको? सर क्रेडिट साइड। सर डेबिट साइड। डेबिट साइड डेबिट साइड। क्या लिखेंगे बेटा इसके अंदर डेबिट साइड में? लॉस ट्रांसफर। बेटा लॉस क्यों करेंगे ट्रांसफर रविंद्र को? बिकॉज वी हैव टू, we have it has been guaranteed that you will be paid 70,000 per annum as a, that is not less than profit। तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि उसको हम लॉस टू प्रॉफिट टू रविंदर। guaranteed profit। टू आप प्रॉफिट की जरूरत नहीं होती है, प्रॉफिट लिख दीजिए तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे। तो रविंदर्स कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा बेटा? 70,000। यस अद्विका। सर हम इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं दिखा सकते कि हम क्रेडिट साइड में पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके फिर डेबिट साइड में करें? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते इसमें। यू वांट दैट कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट आप जब करेंगे तो उसके बाद लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब आपका आईओसी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट गारंटी किया उसको वो डेबिट किया जाएगा। ये यहाँ कर दिया आपने। अब इतना टोटल अमाउंट का लॉस हो रहा है एक्चुअली, मैं बताऊं तो 2 लाख रुपए का, 9,000 रुपए का और 7 लाख रुपए का, ये एक्चुअल में टोटल लॉस हो गया आपका। ये डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होगा? यस बताइए। सर 70,000 क्यों लेंगे? 3 मंथ्स का लगाएंगे ना 70,000 पे। क्या चीज थी का 70,000? सर 70,000 पर एनम है और पार्टनरशिप में वो लोग 1 जनवरी को आए हैं, तो सर 31 मार्च तक 3 महीने के लिए तो उस पे देंगे। मार्च नहीं है इस क्वेश्चन में बेटा, 31 दिसंबर है। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ऑलवेज लुक आउट फॉर द क्लोजिंग डेट, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हैं अभी आप। यही पूरे साल का प्रॉफिट, इसको इतना मिलना ही मिलना है, इतना प्रॉफिट 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर है बच्चों। तो रविंदर्स कैपिटल अकाउंट 70,000 आ गया। प्लीज इसको टोटल करिए, इसको टोटल करिए, यहाँ टोटल करिए, और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, लिखिए बेटा आप लोग, करिए करिए, लॉस ट्रांसफर कर दिए किसके बीच में, किसके बीच में आएगा नेट लॉस? अब यहाँ पे आएगा नेट लॉस, बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसके बीच में ट्रांसफर होगा बेटा? ये रिमेनिंग पार्ट अनिल एंड सुनील। अनिल एंड सुनील एंड सुनील। ये दो लोग के बीच लॉस ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, बस टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है, 2,79,000। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? बेटा मुझे आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। रिद्धिमा क्लियर है बेटा? ये सौम्या, अद्विका, Yes. बेटा टेस्ट जिन लोगों Yes, को टेस्ट है उसके लिए मैं स्पेशली कहूंगा, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आप करिए। डाउट है तो पूछ लीजिए अभी आप। वैल्यू कितना है बताइए मुझे। सर अनिल के में 1,86,000 1,86,000 और सर 93,000। 93,000।
I hope it is clear to everyone. Anushka, clear है बेटा? अर्पित थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे बेटा. अर्पित, मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा बेटा. अभी that girl didn't turn up right now. ठीक है? श्रुति आपको क्लियर है बेटा? मनन, निखिल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.